20वें AFA इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड समारोह का आयोजन AFA अतिथियों की उपस्थिति में किया गया। डॉक्टर सुकांत मजूमदार, राज्य मंत्री शिक्षा विभाग और पूर्वोत्तर विकास विभाग, भारत सरकार। अभिजीत मुखर्जी, पूर्व संसद सदस्य, भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के पुत्र। सुब्रत दत्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। प्रवीण थिप्से, अर्जुन पुरस्कार विजेता, मुख्य कोच, भारतीय राष्ट्रीय शतरंज टीम ग्रैंड मास्टर। तपन पाणिग्रही, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता, मुख्य कोच, भारतीय राष्ट्रीय तैराकी टीम। दिलीप सेन, बॉलीवुड संगीत निर्देशक। रणविजय सिंह, सहायक कमांडेंट, भारतीय तटरक्षक। जहूर आजमी, सामाजिक कार्यकर्ता। कैलाश केजरीवाल, सचिव RSET। बेलारूस के महावाणिज्य दूत, श्रीलंका के महावाणिज्य दूत आदि उपस्थित रहे। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ फुटबॉल खिलाड़ियों को उनके अच्छे खेल के लिए गणमान्य व्यक्तियों द्वारा सम्मानित किया गया। To be here, and I would like to thank first Malay Sengupta ji, and he is running this association, Andheri Football Association, for last 20 years. It's a great achievement. Last 20 सालों से वो एक फुटबॉल अकेडमी बना रहे हैं जो इस इलाके की, मुंबई की फुटबॉल एस्पिरेशन लेके जो लोग फुटबॉल को लेके आगे बढ़ना चाह रहे हैं उनको गाइड कर रहे हैं। और जब मलय सेनगुप्ता जी मुझसे मिले, फर्स्ट टाइम ही मेट मी इन दिल्ली इन माय शास्त्री हॉल्स ऑफिस, सो ही रिक्वेस्टेड मी टू कम हियर कि आप आओ इधर। सो बीइंग ए बंगाली, आई हैव अ profound love for football. Though it is very hard to believe that even in my childhood I was a football player, but now observing my physical fitness, it is very hard to believe. But every Bengali from birth, they have a passion for football. In my childhood, I can remember that in those days I used to visit the local stadium with my father with a bicycle to observe a football match. It is almost 2 to 3 kilometers away from my home, but तब भी हम साइकिल चलाते हुए जाते थे एक फुटबॉल मैच देखने के लिए। First, convey my sincere thanks to Malayu. He is like my younger brother. In fact, my father got him introduced to me in long back in 2004-05. Obviously, there is a relation with football. Like Sukanta Babu, each and every Bengali, whether in Calcutta or from the rural Bengal, the game is football. And my father was used to play football and he was district champion also. At school level also I used to play football. As it was rightly said, football is not only 360-degree game, but it's a great game. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, and my dear sisters and students. It is my great pleasure to be here today with this auspicious occasion, and my great thanks to Mr. Malay Sengupta and the AFA for inviting Consulate General of Sri Lanka to be a part of this auspicious event. Sports have been an integral part of the human culture and history. It has often connected with competition, entertainment, leisure, but not only that, it also gives an benefit to the individuals and the society in physical, mental health and academic level. Mr. Malay Sengupta, who is a UEFA A-licensed coach
AFC B license coach is a very good trainer of the game. He has trained numerous boys who are really doing well, not only in our country but also abroad. He's an international coach who coaches not only in our country, in Mumbai, in Kolkata, but also he coaches in different countries. He is a sought-after coach, a very successful coach. My name is Alexander Mosokov, and I would like to stress my speech, very short speech, on a few moments. First, sport, this is a thing which unites nations. So, and football, soccer, as sometimes we call this game, this is one of the most popular games in the world. World Championships on football, these are the most watchable events all over the world. This football is very popular in my country, Belarus, and this is one of the most popular games as well. And I would like to take this opportunity to invite you all who are the amateurs and professionals of football to visit Belarus. And Mr. Mole, please I invite you, your team, to visit our country and for competitions with your teams. And it will be our pleasure to host you in Belarus. मैं अपना परिचय दे दूंगा, संगीतकार हूँ। मैंने 250 फिल्मों तक संगीत किया है और जिस कंपाउंड में मैं खड़ा हूँ उसमें मेरी काफी यादें पुरानी जुड़ी हुई है, क्योंकि मैं पहले डांस मास्टर था तो मैं डांस सिखाया करता था सर्वोदय बालिका विद्यालय। मौलाए सैनी के लिए मैं एक प्यारा सा गाना गाऊंगा, क्योंकि समय है नहीं, सबको अवार्ड देना है, तो उन्होंने कहा कि कुछ तो गाओ, रणधीर कपूर और उनकी करीना। वैसे ही सेन परिवार है, जमाल सेन, सिंधु सेन, दिलीप सेन, सुनील सेन और मेरा पोता सुरेन सेन, जिसका गाना बाला ओ बाला शैतान का साला आप लोगों ने सुना। और 1 जनवरी को मेरा 5वां पीढ़ी यानी मेरा पड़पोता वो भी लॉन्च हो गया। तो आप
तो स्वाभाविक है इस गेम इंटरनेशनली इतना रिकॉग्नाइज्ड गेम सबसे ज्यादा है। क्रिकेट हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन क्रिकेट इंटरनेशनली इतना रिकॉग्नाइज नहीं है। लेकिन फुटबॉल इंटरनेशनली इतना रिकॉग्नाइज्ड है कि फुटबॉल में आगे भारत को आगे समय में आने वाले समय में आगे बढ़ना ही है। बस जाते जाते हमारे लोग और जनता जो आपको देख रहे होंगे, क्या कुछ मैसेज देना चाहिए? देखिए, मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि आप अपने घर के जो बच्चे हैं उनको मैदान में भेजो। जब तक वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मैन या कॉम्प्लीट वोमन जो भी बोले वो बन नहीं सकता विदाउट स्पोर्ट्स। सबको खेलना चाहिए। हम भी बचपन में खेल के आए हैं, तो सबको खेलना चाहिए और खेलने से बहुत सारी गुणों की विकास होती है। एक मैन जो कंप्लीट मैन जिसे बोला जाता है वो बनने में सुविधा। सर सारे तरीके से मुलायम सर लगातार जो बच्चे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करते हो, कभी किसी का ये नहीं देखते हैं, लेकिन जिस तरीके से लगातार जो है स्पोर्ट्स में खास करके फुटबॉल को तजुर्बा नहीं दिया गया है जितना क्रिकेट को दिया जाता है, लेकिन आज लोगों को कितना जरूरत है कि सभी स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने की। देखिए, सभी स्पोर्ट्स हमें आगे बढ़ाना है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि क्रिकेट हमारे देश में सबसे पॉपुलर गेम है, लेकिन क्रिकेट इंटरनेशनली उतना रिकॉग्नाइज नहीं है। 2-3 बड़े देश हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, बाकी सारे छोटे देश और मेनली जो ब्रिटिश कॉलोनी रहा वही क्रिकेट खेलते हैं। यूएसए नहीं खेलता है उतने अच्छे से, चाइना नहीं खेलता, ब्रिटेन थोड़ा बहुत खेल लेता है, रशिया नहीं खेलता, फ्रांस नहीं खेलता, जर्मनी नहीं खेलता। तो अगर हमें स्पोर्ट्स में भारत को आगे बढ़ना है तो ऑब्वियसली फुटबॉल में काम करना पड़ेगा। और हमारे संयुक्त जी यहाँ पे जो अंधेरी फुटबॉल एकेडमी ये चला रहे हैं, इसके द्वारा नए फुटबॉलरों की सृजन हो रहा है, नए फुटबॉलर बन रहे हैं और वो बहुत ही सर्टिफाइड और रिकॉग्नाइज कोच है। तो आगे आने वाले समय में भी हम मानते हैं कि अगर हमारे लोग बच्चों को अगर मैदान में भेजेंगे तो आगे आने वाले समय में हम ग्रेट फुटबॉलर तैयार कर सकते। प्रदीप जी बोलो। सर फुटबॉल के लिए जो अभी अंधेरी फुटबॉल एकेडमी का अवार्ड फंक्शन हुआ है, अब देश के कोने कोने में अंदर गाँव में भी बच्चे जो है उत्साहित हो रहे हैं कि स्पोर्ट्स में आए, एजुकेशन को साथ में लेते हुए, इसके लिए कुछ बोलना चाहेंगे आप? बिल्कुल बोलना चाहिए। ये एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज है, एजुकेशन स्कूल में पढ़ाई, कॉलेज में पढ़ाई करिकुलर एक्टिविटीज है, लेकिन उसका खास मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इसका भी जरूरत है। एंड फुटबॉल ये है वन ऑफ द मेन गेम इंडिया में है, सस्ता में भी है, किसी जगह पे भी आप खेल सकते हो। इवन मोहल्लों पे देखोगे छोटा छोटा बच्चे लोग मेरे घर के सामने भी खेलते रहता है। फुटबॉल ऐसा एक गेम है जिसमें फिजिकल स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन, माइंड कोऑर्डिनेशन विथ माइंड, फिजिकल एक्टिविटीज एंड ये सब कुछ एक साथ राइटली सेट 360 डिग्री एंगल में सब होता रहता है। और फुटबॉल कोई भी गेम का, पर्टिकुलरली फुटबॉल का कोई भी एक पर्टिकुलर मोमेंट वो रिपीट नहीं होता है, सब यूनिक होता है। जो गोल पहले हुए एक ही आदमी गोल किया, सब एक ही प्लेयर्स है, सेम फील्ड, ओपोनेंट सेम, लेकिन ईच एंड एवरी गोल और अदर जो भी है टारगेट सिमिलर नहीं है, ईच एंड एवरी यूनिक। एंड इसी से सबसे ज्यादा मेंटल कोऑर्डिनेशन होता है, अपना बच्चे का साथी का साथ कोऑर्डिनेशन होता है। एट द सेम टाइम ओपोनेंट जो है वो भी प्लेयर है, तो उनका भी क्या चाल हो सकता है, क्या सोच हो सकता है, उसको काउंटर कैसे किया जाए, उसी मोमेंट पे डिसीजन लेना पड़ता है। ये फुटबॉल का एक बहुत खासियत है एंड ये हर जगह पे और गली पे होना चाहिए। सोशल मीडिया का जमाना है, अभी गाँव से अलग अलग टैलेंट निकल के आ रहे हैं, वायरल हो गए तो चल जाते हैं, आगे नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं टैलेंट रुक जाता है। सुविधा या पॉलिटिक्स में घुस के खत्म हो जाता है। ऐसा इसके लिए कुछ बोलेंगे आप? नहीं, देखिए ये सरकार का काम है, सोसाइटी का काम है। हर स्कूल में जनरली हमने बंगाल में जो देखा है, गांव में स्कूल में फील्ड है, लेकिन शहर वाला स्कूल में फील्ड नहीं है, लेकिन दूसरा किसी जगह पे खेलते रहता है। जैसा हमारा कलकत्ता में जो स्कूल था उसमें अपना ग्राउंड नहीं था, तो हम लोग दूसरा किसी के ग्राउंड पे खेलने जाता था। तो वो पाबंदी होना चाहिए। स्कूल ये एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, इसका इक्वली मार्किंग किया जाए। उसमें जैसा ना फाइनल एग्जाम में हायर सेकेंडरी में ऐड नहीं होता, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो करने से आदमी बच्चे लोग सीरियसली लेंगे। सर, अंधेरी फुटबॉल एकेडमी के 20 साल पूरे हो गए हैं और आज मुले सेन जी और जिस तरह से खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया, आप किस तरह से खिलाड़ियों को और बच्चों को प्रोत्साहन देंगे? बिल्कुल, जो देखा सबसे छोटा छोटा जो बच्चे लोग है, ये भी है सामने, हाँ, उनका पेरेंट्स को भी काफी धन्यवाद उनको, क्योंकि आप लोग उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये इसी से टैलेंट निकलेगा। टैलेंट
इसको इनकलकेट करना पड़ता है, रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ता है। मलय संघ का जो फील्ड में देता है, मैं तो इनको बता ही दूंगा, जो आपका ये अंधेरी AFA ये एक दिन पूरा भारत में छाया जाए, पर्टिकुलरली बंगाल में भी छाया जाए। फुटबॉल बहुत वहाँ प्यारा है। तो ये बच्चे लोग को जो कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। मैं वो करूंगा, उनका पेरेंट्स को भी धन्यवाद करूंगा, क्योंकि उन लोग उनको सपोर्ट करते हैं। बच्चे लोग का सपोर्ट के अलावा होता है। इस तरीके से आज यहाँ पर अखिल जी और केंद्रीय एजुकेशन मिनिस्टर सब आके बच्चों को प्रोत्साहित किए, और साथ ही आपको भी धन्यवाद दिए, क्योंकि आप 20 साल से एक खेल के प्रति, फुटबॉल के प्रति लोगों को जागरूक और बच्चों को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे 20 वर्षों का जो सफर है उसमें? देखिए 20 वर्षों का सफर देखते देखते निकल गया, कैसे निकल गया उनको समझ में नहीं आता है। सबका सपोर्ट, सबका पेरेंट्स का सपोर्ट, आप लोगों का भी सपोर्ट मिला। बेसिकली आपको तो धन्यवाद बोलूंगा, क्योंकि आज के साथ आज नहीं, बहुत दिन से आपका साथ प्रेमलता जी के साथ सबके साथ रिलेशन है। आप लोग भी आते हैं, हम लोगों को सपोर्ट करते हैं। बच्चा लोगों को देखिए, बच्चा लोगों को हाईलाइट्स करना सबसे ज्यादा जरूरी है आज के दिन में, क्योंकि बच्चा लोगों को जब तक हाईलाइट्स नहीं होगा तब तक बच्चा आगे नहीं जा सकता है। तो ये जो काम है, ये बड़ा मीडिया वाला बहुत सारा जो पैसा देके आप क्रिकेट वाला उन लोगों का पता लगा, बट फुटबॉल का एक छोटा एकेडमी को आप लोग हाईलाइट्स कर रहे हैं, बच्चा लोगों को हाईलाइट्स कर रहे हैं। वेरी वेरी थैंक्स फॉर दैट रिपोर्ट। सबसे ज्यादा जरूरत क्या लगती है, खास करके इस तरीके के क्लास को चलाना, बच्चों को इकट्ठा करना, उनको प्रैक्टिस कराना सबसे ज्यादा जरूरत क्या ज्यादा जरूरी है? मुंबई में सबसे ज्यादा जरूरी है ग्राउंड। जो एकेडमी जेन्युइन काम कर रहे हैं, जो जेन्युइन एकेडमी काम करते हैं मुंबई में, उसको सपोर्ट नहीं मिलता है। अब जो लोग बिजनेस करते हैं उन लोगों को जमीन मिल जाता है, वो लोग गवर्नमेंट फ्री टैक्स फ्री जमीन मिल रहे हैं, वो लोग करोड़ों रुपया का बिजनेस कर रहे हैं। बट जनरल जो खेलने वाला बच्चा, उन लोगों को उधर जगह नहीं मिलता है। आप देखिए इधर बहुत सारा स्पोर्ट्स क्लब है बड़ा बड़ा, जिन लोगों के पास ग्राउंड है, उधर शादी पार्टी हो रहा है, ये पार्टी हो रहा है, वो पार्टी हो रहा है, बट बच्चा लोगों का खेलने का ग्राउंड नहीं मिल रहा है। यही सबसे दुखी बात है। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि ग्राउंड दीजिए, जो एकेडमी आप लोग सामने कीजिए, जो एकेडमी जेन्युइन काम कर रहे हैं, बच्चा लोगों को आगे बढ़ा रहा है, उनको ग्राउंड दीजिए, उनको खेलने का, बच्चा लोगों को खेलने का मौका दीजिए। मुंबई का बच्चा लोग आज 8-5 साल के बाद कहाँ खेलेगा? सभी जगह पे तो बड़ा बड़ा मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, बड़ा बड़ा सुपर मार्केट है, कहाँ खेलेगा बच्चा लोग? खेलने का तो जगह बच्चा लोग को देना चाहिए। गवर्नमेंट ये प्लान करे। मोले जी, जिस तरीके से आप बाहर भी जाते हैं कंट्रीज में और इंडिया में भी आप आते हैं, तो दोनों में डिफरेंस देखने क्या मिलता है आपको? बाहर गवर्नमेंट का सपोर्ट देखने का लायक है। बाहर गवर्नमेंट, आज इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ मैं, इंग्लैंड में 3 साल कोचिंग किया। उधर कोई कोचिंग करना चाहता है, कैंप करना चाहता है, बोरो ऑफिस में जाके अप्लाई करेगा, विदिन 7 डेज उसको ग्राउंड प्रोवाइड होता है, ग्राउंड में ड्रेसिंग रूम प्रोवाइड होता है, एक काम का लोग प्रोवाइड होता है। बट इधर कहाँ है? इधर ये सब नहीं है। आप छोटा बाहर का छोटा कंट्री, मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ, श्रीलंका में AFA श्रीलंका में है, हमारा एकेडमी है। उधर कोई छोटा बच्चा का कोई टूर्नामेंट होता है, उधर का कंपनीज हेल्प के लिए आता है, बट हमारे इधर कोई कंपनी बच्चा लोगों का टूर्नामेंट के लिए नहीं आता है। यही दुख की बात है। थैंक यू सर।